ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਸਿਹਤ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਮ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं बीच बीच में हिंदी भी चलेगी है ना? हाँ हाँ चलेगी। मेरा मानना ये है कि इंसान शरीर से नहीं दिमाग से बीमार होता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। और सुबह सुबह कहते हैं ना फीवर आता है जब, तो मैं आईने के सामने जाता हूँ और आईने के सामने जा करके अपने आप से आंखें मिलाता हूँ और आंखें मिला करके अपने आप को कहता हूँ, उस टाइम फीवर को कहता हूँ कि हट, काम करने दे, अभी हट जा, शाम को आ जाइए जब सोने का टाइम होगा। वो हट जाता है। ठीक है। क्योंकि कहते हैं जो हम सोचते हैं वो होता है। मैं सोचूंगा कि मेरे को बुखार है तो होगा, और मैं सोचूंगा कि मेरे को बुखार नहीं है भी सी नहीं है, तो उसको पता है कि ये बंदा जिद्दी है, हट जाओ यार, कोई फायदा नहीं है, कहीं और चलो। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦੀ ਬਣ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੈਸ। ਤੇ ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਔਂਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ हैं कि मुसीबत आती है और बस छुप के बैठ जाते हैं कि ठीक है, हाय मेरे नाल ये हो गया है ना, मेरे नाल वो हो गया। देखो आपकी लाइफ में ना हर तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि जिंदगी में क्या चाहिए, तो जवाब देते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। परमात्मा ना सब देख रहा होता है, आपकी हर बात को मानता है परमात्मा। वो कहता है तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। अब इंसान ऐसी संगत में पड़ जाता है और कहता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो परमात्मा कहता है ठीक है तथास्तु, तेरे को थोड़ा दिया, और उसको थोड़ा मिलता है। ऐसे भी हमें लोग मिलते हैं जिंदगी में। पूछो जिंदगी कैसी चल रही है, लाइफ कैसी चल रही है, कहते धक्का लगा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं ठीक है तथास्तु, तो जिंदगी को धक्का लगाता है। ऐसे भी लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जिंदगी कैसी चल रही है, जवाब क्या देते हैं, बस कट रही है, तो परमात्मा भी कहता है ठीक है तथास्तु, तो जिंदगी को काटता ही रहे। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है। मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव ना लोगों के पास खड़ो,
जितना नेगेटिव सुनोगे, जितना नेगेटिव बोलोगे, जितने नेगेटिव लोगों के साथ मिलोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलो, उनसे दोस्ती करो, विचार उनसे सुनो, आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार हमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, हम बोलते हैं कि मेरे को पता है यार आज मेरा काम बनेगा नहीं, और वो वाकई वो काम बनता नहीं है। मतलब पहले ही हम पहले ही नन्ना कर देते हैं अपने काम को। बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं और कह के निकलते हैं, ले आज कोई मेरा काम रोक के दिखाए, होगा ही होगा, और वो काम होता है। कहने का मतलब है कि हम जो सोचते हैं वो होता है। मैं सोचूंगा कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, अगर मैं सोचूंगा कि मैं तंदुरुस्त हूं तो मैं तंदुरुस्त हूं। मेरे से मोस्टली कॉल पे कोई बात कर लेता है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, कुछ भी, मेरा हमेशा एक ही वर्ड होता है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैं सबसे ऊपर हूं। सबसे ऊपर हूं या नहीं बात की बात है, लेकिन मैं तो समझदा ना अपने आप ਨੂੰ। मैं अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट पर्सन मतलब नेगेटिव नहीं लेके अपने आप को मैं पॉजिटिव कहूंगा। हमेशा अपने आप से कहते रहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इस पूरे प्लैनेट पर मैं सबसे बेस्ट हूं। जिस दिन आपने अपने आप को ये चीजें कहनी शुरू कर दी, उस दिन अपने आप से प्यार हो जाएगा। और अपने आप से प्यार करने के लिए अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं सबसे सुंदर हूं। डजंट मैटर आप गोरे हो, नीले हो, काले हो, मोटे हो, लंबे हो, नाटे हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सबसे बड़ी सोच। आपकी सोच क्या है, अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आप को छोटा महसूस सोचते हो कि अपने आप को बड़ा महसूस कराते हो। तो कहते हैं ना, आस्क फॉर मोर, बड़े से बड़ा मांगो, वो बैठा ही देने के लिए है। हम मांगते क्या है, थोड़ा। परमात्मा कहता है ठीक है आपको थोड़ा ही मिलेगा। बट कुछ लोग होते हैं जिंदगी में क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, हाथ फैला देते हैं, इतना कुछ चाहिए जितना किसी के पास ना हो। मैं कहता हूं इतना नहीं आएगा, इतना तो आएगा, इतना नहीं आएगा, इतना तो आएगा, इतना नहीं आएगा, इतना तो आएगा, कुछ तो आएगा। अगर मांगेंगे इतना तो फिर राजन जी, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ किस चीज़ की कमी है? ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की कमी है आज ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ? लोगों का प्यार मिलता है, यही सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत कुछ है। सब कुछ दिता, जहां जाता हूं लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी कोई दुश्मन नहीं बनाया, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, बहुत प्यार मिला सब जगह, सब कुछ दिता परमात्मा ने, सब कुछ मिला है। कहते किसी टाइम अखबार भी वंडी है। ये बातें वैसे किसी को पता नहीं है, सानू तो पता है। बिल्कुल अखबार वंडी है। हाँ। 1500 रुपए के पिछे इंस्टीट्यूट का बिल जमा कराने पिछे आंदी है याद अज। बिल्कुल हाँ जी, अज हरेक खंबे ते तुहाडी ऐड लगी हुई है, हरेक जगह ते राजन चौधरी की फोटो लगी हुई है, मोटिवेशनल स्पीकर ये वो। तो कभी अखां 'च हंझू आते हैं चीज़ सोच के भी, कभी मैं साइकिल ते जाके अखबार वंडी सी, बिल भरन वास्ते पैसे नहीं सी इंस्टीट्यूट दे। वक्त था एक, वो ऐसा वक्त था, और वो वक्त बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ के बहुत बड़े पार्ट्स होते हैं, अप डाउन आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। कभी भी आप कहो कि आपकी ज़िंदगी प्लेन सड़क की तरह चल रही है, वो कभी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कभी आप चढ़ोगे, कभी उतरोगे, कभी चढ़ोगे, कभी उतरोगे। तो पार्ट ऑफ लाइफ है जी, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वहीं घर पर पड़े रह जाएंगे और कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना, हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को अपनी तकदीर बना रहे होते हैं। तो वो टाइम भी देखा है, रात को 2-2, 3-3 घंटे सोए हैं। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। 12-12, 1-1 बज जाते हैं कम समटाइम्स सोते सोते। 3 बजे मैं पूरे उठ जाता हूँ, 3, 3:15 के आसपास। किनू समझते हो अपनी सफलता के पीछे किहदा हाथ है सब तो ज़्यादा? आप सबका हाथ है, पूरे शहर वासियों का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका प्यार मिलता है मेरे को। किसी ਨੂੰ देख के एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, किसी ਨੂੰ देख के तो मोटिवेशनल स्पीकर बने होने, किसी ने तो मोटिवेशन दी होनी ना। मेरे को नहीं पता ये विचार मेरे मन में कब और कैसे आ गया था। जस्ट एक बार क्या हुआ था कि दिवाली की विश थी, जिवें आप दे देंगे हैं दिवाली दी बहुत बहुत, तो वो कैमरा लेकर के मेरे सामने आए, कहते कि दिवाली की विश आपकी देनी है।
तो मैंने कहा मेरे को बोलना नहीं आता है कैमरे के आगे, आप छोड़ दीजिए मेरे को, है ना, तो आप सिर्फ मेरी मतलब फोटो लगा देना बहुत, और क्या है। कहता नहीं, आप कैमरे के आगे बोल दो। तो मैं कैमरे के आगे बोला, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। तो सामने जो कैमरामैन था वो हंस पड़ा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2014-15 की बात है। अच्छा, तो वो मेरे पास आए तो दोबारा से शॉट लेने लग गए। 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट, 5 शॉट में से नहीं लिए गए, मेरे से बोला ही नहीं गया। जाते जाते ना वो कमेंट कर गए, कहते वाह राजन चौधरी, तू कैमरे के आगे नहीं बोल पाया। अच्छा। मेरे को बड़ी मतलब एक बार तो मेरे को शर्म महसूस हुई। मैं घर पे गया, डिनर किया, शीशे के आगे बोला, सारी रात मैं शीशे के आगे सारी रात मैं सोचता रहा कि अच्छा। यार तू कैमरे के आगे नहीं बोल पाया, व्हाट यू आर डूइंग, मतलब क्या। वो भी एक दिवाली की विश है, वो भी एक दिवाली की भाषण wish, तो सिर्फ देना एक लाइन थी, है ना, मतलब तू कैमरे के आगे नहीं बोल पाया राजन, हद है यार। सुबह 6 बजे का टाइम था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया कहाँ पे हो? कहते मैं सोया पड़ा हूँ। मैंने कहा आओगे कैमरा लेके? कहते इस वक्त? मैं कहा हाँ आ जाओ। कहते चलो मैं 8 बजे तक आता हूँ। वो 8 बजे तक आए, अपना कैमरा लेकर गई। तो जैसे ही ऑन किया मैंने धा 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 विश 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 मतलब पूरा सारा कुछ बोल दिया। हाँ। कहते क्या हुआ ये? मैंने कहा हुआ कुछ नहीं है, मेरे को रात को नींद नहीं आई। और एक वो वक्त था, आज वो वक्त है, डजंट मैटर, सामने एक बंदा खड़ा है, सामने 5000 बंदा खड़ा है, अब नहीं टांगे कांपती। देखिए वीडियो कॉलेजेस दी मैंने सेमिनार्स देने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, 1 2 3 बच्चों से स्टार्ट किया था, और वहीं से हौसला खुलता चला गया। एक ऐसा वक्त था, मैंने कॉलेज में सेमिनार दिया, करीब 2000 बच्चा होगा। फर्स्ट सेमिनार था, इतना बड़ा सेमिनार था मेरा, और वो एक पीछे कुछ होते हैं ना शरारती तत्व। बिल्कुल आवांगा, उस ते भी गल करांगा थोड़े नाल, है ना, तो वो शरारती तत्व शरारती बारे गल करांगा मैं। तो वो शरारती तत्व कुछ ना कुछ है ना कमेंटिंग करते हैं। तो मैं बड़ा यार मायूस हुआ, मैंने कहा यार हद है। मैं घर पे आया, हालांकि बहुत इज्जत मिली, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने, चेयरमैन ने साथ बैठ के लंच किया, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ, है ना, वो भी बहुत अच्छा था मेरे लिए पल। बट जब मैंने सेमिनार दिया तो वो बच्चे मतलब कुछ शरारतियों करके, मैं जब वापस घर पे आया तो मैंने एक बार सोच लिया राजन आज के बाद मैं सेमिनार नहीं दूंगा, ये तो मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। सुबह का टाइम था, 9 बजे के आसपास का, उसी कॉलेज से फिर फोन आ गया, कहते सर एक बार दोबारा सेमिनार कराना है। मैंने कहा क्यों, वो ठीक नहीं हुआ? कहते नहीं सर, वो फर्स्ट ईयर को सेमिनार था, अब सेकंड ईयर को कराना है। मैंने कहा पर मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वहां पर बच्चे कुछ कमेंटिंग कर रहे थे, पिछले 10-12 बच्चे। कहते नहीं सर, सारे बच्चे तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाता हूं। अच्छा। मैं फिर गया, फिर ऐसे हुआ, कुछ शरारती लोग जैसे होते हैं ना, तो फिर मैंने एक ना कहानी भी पढ़ी थी, धीरूमई मानी की कहानी थी वो। बिल्कुल। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप जब सफलता के रास्ते पे चलते हो तो आपके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता है? तो कहते जब मैं सफलता के रास्ते पे चलता हूं 100 कुत्ते आते हैं, वो भौंकते हैं, पर मैं बिस्किट साथ में लेकर के चलता हूं। जब वो भौंकते हैं मैं उनको बिस्किट खिलाता हूं, वो भौंकना बंद कर देते हैं। अगर मैं उन कुत्तों पे पत्थर मारूंगा वो काटना शुरू कर दे। अभी तो भौंक रहे थे, फिर वो काटना शुरू, वो और भौंकेंगे, वो और मेरे को काटेगी। इससे बेटर है कि मैं उनको बिस्किट खिलाऊं, अब वो दुम भी हिलाते हैं वो पूंछ भी हिलाते हैं, वो मेरे हो जाते हैं। सही बात। तो जिंदगी का एक असूल है कि आप जब सफलता के रास्ते पे चलते हो, जब आपका नाम बनता है, जब दुनिया आपको पसंद करने लगती है, अगर 50% लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो 50% आपको नापसंद भी करते हैं। जहां प्रशंसा होगी वहां आलोचना होगी ही होगी। बिल्कुल। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रशंसा पर जाना है या आलोचना पर जाना है। अगर आप आलोचना की तरफ चले गए तो आप खत्म हो जाओगे, गिर जाओगे। ज्यादातर लोग जो हैं
वो आलोचना की तरफ ही चले जाते हैं। आलोचना की तरफ क्योंकि जाते वो हैं। सफलता की तरफ ध्यान नहीं देते अपनी, बिल्कुल। फिर वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बट कुछ लोग जो बड़े दिल से आपके साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल, वो दिल से आपके साथ अटैच होते हैं और वो दिल से आपके लिए दुआएं मांगते हैं कि ये मेरा उनको- भाई, मेरा दोस्त या मेरा बेटा है ना। और जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, थोड़ी माड़ी चीज भी अच्छी लगती है फिर। यस, और वही लोग आपको पुश करते हैं कि यार तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा खड़े हूं। हैं, हाँ बिल्कुल। सिर्फ उनका कहना ही बहुत होता है, पर जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, ओए तू करेगा, तेरे से नहीं होने वाला है, क्या छोड़ है? इस बात ये को, काम उसने भी नहीं। किया था, फेल हो गया, छोड़ यार, नहीं होगा। पर कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो पुश करते हैं, यार कर यार, तेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। आप उन लोगों के साथ जुड़ो। एक चीज शेयर करा, पहला तो मैंने ये दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ, मतलब बुरी लगी? मैं किसी की बात का कोई भी बुरा नहीं मनाता पहले तो। मैं अखबार वाली ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਰੇ ਹੈ ਨਾ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ 12 12:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਫਲਤਾ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭੌਂਕਣ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सीगा, मतलब एकदम तुसी इतने फेड अप हो गए? देखो जब एक कहते हैं ना, जब हम नए नए है ना, मैं जैसे वीडियोस बनाते हैं हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे डलते हैं, तो स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था कि यार हाय इसने उल्टा सा कमेंट कर दिया है ना, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ। पर धीरे धीरे ना बात समझ में आने लग गई कि दुनिया हर तरह की होती है, जहां प्रशंसक हैं वहां आलोचक भी होंगे। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा यार, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। हम तो क्या ही हैं, हम तो फिर भी मतलब तुच्छ प्राणी है। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है हम लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। तो ठीक है, आप अपने कर्म करते रहो, लोग आएंगे, बोलेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। जब आपका दिल कहता है ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। नहीं, जब आपका दिल कहता है कि मैंने उल्टा काम किया, तो आपकी टांगे भी कांपती हैं, आपका दिल भी कांपता है। आप अपनी नजरों में अच्छे बनो, दूसरों को क्या है वो तो चलता रहेगा, वो तो नहीं। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ? देखो ऐसा होता मदद है, करना किसी का, देखो ऐसा होता है, मैंने वो वक्त देखा हुआ है। स्कूल में जाते थे, हमारे खुद के जूते फटे होते थे, हम अपने जूते छुपाते थे, वो वक्त देखा हुआ है। ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, वो वक्त भी देखा हुआ है कि हमारे स्कूल की फीसें तक नहीं जा पाती थी, वो वक्त भी देखा हुआ है। हर तरह के वक्त देखे हैं हम। मन में सिर्फ इतना होता है, अपनी मेरी गाड़ी में हमेशा 300-400 चप्पल पड़ी रहती है। बिल्कुल है। मन में सिर्फ इतना होता है कि कोई भी बच्चा दिख गया मेरे को, पैरों में चप्पल नहीं है, ठंड है, तो उसी टाइम हम चप्पल उसको पहना देते हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके फादर नहीं होते हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उन बच्चियों को, उन बेटियों को, उन बहनों को फ्री पढ़ा देता होता हूँ। मेरा कुछ नहीं है ऐसा। लोगों का काम क्या है, लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, है ना, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, डजंट मैटर, सोचने दो, है ना। लोगों का काम ही है रोकना, टोकना, और जब खुद हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसे ही होता है
ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? है संभव एनजीओ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ जो ਲੋਕ दिख ਜਾਣਨਾ जाए। ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ जो दिख जाए, जहां दुख दिख जाए वहीं चले जाते हैं हम। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? आज मौत भी आ जाए तो डर नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार कुछ किया। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। मैंने तो क्या ही करना है, वो महादेव वृंदावन- है भेजने वाले। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ हम्म, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਵੀ ਆਪ ਜੈਸੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ? बिल्कुल आ रहे हैं। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। देखो जी, मैं शुरू से ना भगवत गीता का रहा हूँ ਹੂੰ और अपने महादेव का रहा हूँ। नलास मंदिर हमारे एरिया में है, खुशकिस्मत है। बहुत हम किस्मत वाले हैं, बहुत प्यार भोलेनाथ से है, महादेव से है। हमेशा हर किसी में महादेव को देखा है, किसी भी मंदिर गए, कहीं भी गए धार्मिक जगह पे, मैं शुरू से एक ही रहा हूँ महादेव का। तो बहुत सारे संतों को सुना है, बहुत सारे लोगों को माना है, देखा है, समझा है, बट जब मैंने प्रेमानंद जी को देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो वाकई उनकी बातों में कुछ था। उनके चेहरे पे मेरे को ऐसा एक नूर दिखा, कुछ है। उनकी बातें मैंने सुनी, कुछ था, डिफरेंट था। कई बार वृंदावन गया, कोशिश करी मिल लूं, एक बार देख लूं, बट नहीं हो पा रहा था। हर बार एक संसारिक प्रश्न मन में होता था, पर इस बार था कि आध्यात्मिक प्रश्न लेके जाना है, और वो था भी इसी मेरे मन में। मेरे मन में था कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों में सबसे उत्तम क्या है। मन में आता था कि हम भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी बांटते हैं, लेते भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। बस उसी का मेरे को जवाब चाहिए था। तो जवाब यही मिला कि आपकी रुचि किस में है। मेरी रुचि तो कर्म योग में है। कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बस वो मेरे को जवाब चाहिए था, मेरे को जवाब मिल गया। ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए बस कृपा चाहिए। बिना कृपा के आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं, बिना कृपा के नहीं पहुंच पाते हैं। ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਖਾਸ देखो जो ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ लोग ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? देखो जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको जीना सिखाते हैं, आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई बड़ा संत या छोटा संत नहीं होता है। मेरी नज़रों में वो सब के सब भगवान का रूप होते हैं। एटलीस्ट आपको अच्छी बातें तो सिखा रहे हैं, आपको जीना सिखा रहे हैं। आप मानोगे, मैं मोटिवेशन देता हूं, सेमिनार्स दे करके आता हूं, कभी कभी ना ऐसे ऐसे कमेंट आए होते हैं कि सर सुसाइड करना था, आप देखना सर आग लगा दूंगा, सर कुछ बन के दिखाऊंगा। आप मानोगे मेरे को नींद कितनी प्यारी आती होगी। भी मैं कुछ जे गल करिए अगले दे कुछ समझ ही और एक बार नहीं, हजारों बार ऐसे कमेंट आए हैं कि सर सुसाइड करना था, अब देखना। अब मानोगे उस टाइम नींद कितनी प्यारी आती होगी, सुकून की। और उस टाइम लगता है कि यार कुछ कर लिया। मेरी नज़रों में पैसा वैसा ये वो कुछ नहीं है, ये तो यहीं रह जाना है, यहीं रह जाना है। बट कहते हैं ना, जब जाओ तो लाखों लोग रोए जरूर कि यार कुछ था। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ क्यों नहीं है? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਉਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਉਹੀ ਬਿਸਕੁਟ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? मैंने जिंदगी में सीख ली है कि आपके अंदर जितना मर्जी दुख आ जाए, कभी चेहरे मत लेके आना। जितना मर्जी अंदर से टूट जाओ, कभी चेहरे पर वो दुख मत लेके आना। अगर लोगों को पता लग गया कि आप टूट चुके हो तो आपको लूट लेंगे। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ हमेशा ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ मुस्कुराते रहो। ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, हमेशा ਉਹਦੇ मुस्कुराते ਸਾਹਮਣੇ रहो। ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ Yes. ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ दुश्मन क्या, दोस्त क्या, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि कुछ नहीं पता अगले मिनट क्या होने वाला है। बट हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखनी चाहिए। क्यों रोंदू राम बन के रहना है ना?
मेरे ना एक स्टूडेंट था, मैं बात शेयर करता हूँ, कहता तक बड़ा मुंह सा बना के आया। मैंने कहा क्या हुआ, परेशान क्यों है, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? कहता सर सवेरे सवेरे रोज मेरे मम्मी पापा मज्जा नु धुमाण वास्ते ड्यूटी ला देने हैं। मैंने कहा तो तू मत कर, तो अपने पापा को बोल दे। कहता नहीं सर पापा बुजुर्ग हैं। मैंने कहा फिर मम्मी को बोल दे। कहता सर मम्मी को कौन काम दसेगा। मैंने कहा फिर भाई को बोल दे। कहता मेरा भाई है नहीं। मैंने कहा फिर बहन को बोल दे। कहता वो है नहीं, मैं अकेला ही हूं। मैंने कहा मतलब काम तूने करना है? कहता हाँ सर काम तो मैं नहीं करना है। मैंने कहा काम करना ही तू नहीं है, फिर रो रो के क्यों कर रहा है, हंस हंस के कर। कहता सर कैसे सर? मैंने कहा काम कर, जब तू अपनी मज्जों को नहलाता है ना, हेडफोन कान में लगा, मोबाइल पॉकेट में डाल, कोई बीट सॉन्ग चला दे और नाचना शुरू कर दे। अभी तो तू रो के उनको साफ कर रहा है ना, अब जब बीट सॉन्ग तेरे कानों में चल रहा है तो तू डांस करके करेगा। अच्छा, इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसे ही किया उसने। अगले दिन वापस आया मेरे पास, कहता सर मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आज मैंने 1 घंटे वाला काम 20 से 25 मिनट में कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहता जो आपने एक्टिविटी बताई थी कि गाने चला के मज्जों को नला, तो वही असूल है जी, काम तो करना है। हंस हंस के करना है या रो रो के करना है वो आपकी मर्जी है। तो बेहतर है ना कि हंस हंस के करो, माहौल चेंज कर दो। लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम है, कहीं पड़ोसियों के साथ झगड़े हैं, कहीं बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है। अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, मैं तो कहता हूं कि सुबह सुबह उठते सार एक बीट सॉन्ग लगाओ, नाचना शुरू कर दो। कोई आएगा पूछेगा क्या है सुबह सुबह? कुछ नहीं, मूड अच्छा था इसलिए डांस कर रहा हूं। हो सकता है वो भी डांस करना शुरू कर दे। अब वो आएंगे पीछे पे, पापा आ जाएंगे, वो क्या कर रहे हो सवेरे सवेरे डांस? कुछ नहीं पापा, मूड बढ़िया सीगा, आ जाओ। हो सकता है पापा भी डांस करना शुरू कर दे। आप देखो आपके घर का माहौल कैसा हो गया, सबने नाचना शुरू कर दिया सवेरे सवेरे। मैं कहता हूं प्रॉब्लम सारे घर में है। एक होता है सुबह सुबह परेशान, वॉशरूम जाएगा परेशान, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, बिजनेस में जाएगा परेशान, इतना परेशान होगा कि जो भी उसको मिलेगा बस यार मेरी सरकारें ऐसी हैं, यार मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, भगवान ऐसा है। भगवान को भी दोष देने में 1 मिनट लगाते हैं कि तेरे को मैं ही दिखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब एक ऐसा बंदा होता है कि टेबल के साथ पैर भी अड़ गया, 1 मिनट में ऊपर दिखता है कि तेरे साथ मेरी बस दुश्मनी निभाया कर तू। 1 मिनट में भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि बस परवाह ही नहीं करते किसी की। जो जिसने रोना है ना, उसने सुबह से लेकर रात तक रोना ही रोना है। पर जिसने हंसना है, 100 दुख आ जाए, तकलीफें आ जाए, धूप आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसने काम करना है। मेरे को आपकी भी एक बात याद आती है। एक वक्त था मैं उसमें कंप्यूटर सिखाता होता था, बड़ी बारिश वाला टाइम था। बहुत आपके पास एसिड कार होती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और बारिश का टाइम था और सड़कें सारी भर रखी थी। मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो दिल पे राज करते हैं। आपकी वो बात हमेशा जब भी मिलता हूँ दिल पे रहती है। क्यों? सुबह सुबह जी आपका फोन आ रहा है मेरे पास, राजन कहाँ पे है? मैं घर पे। यार वो टाइम हो गया, 8 बज गया, 8 बजने वाले हैं, मैं ना घर पे लेने आ रहा हूँ कार पे। अरे पानी बड़ा खड़ा हुआ है यार। पानी बहुत खड़ा हुआ है, सड़कें भरी हुई थी, दुकान में भी पानी आया होता, दुकान में भी पानी आया होता। मतलब देखो, जिसके अंदर जुनून है कुछ करने का, जिसके अंदर कुछ आग लगी हुई है ना कि मैंने करना है, फिर वो घड़ी नहीं देखता। पहला शख्स था जिसने हिंदी टाइप सीखी थी। हिंदी टाइप आ गई थी, है ना। मेरे को याद है आपने जो भी सीखा था, है ना, बड़े जुनून के साथ सीखा था। आप घड़ी नहीं देखते थे उस वक्त। अब आपकी भी देखो वही सफलता है। जब हम देखो सफलता की तरफ जाते हैं ना, तो घड़ी देखना बंद कर दो। जिसने घड़ी देखी वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। साफ सी बात है। बिल्कुल, घड़ी मत देखो। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੋग ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹਣ? मैं बस सबसे यही चाहता हूं कि सारे मिलजुल कर रहो, सब जगह, चाहे आपका पड़ोस है, चाहे आपका शहर है, चाहे आपका घर है, हर जगह खुशी का माहौल होना चाहिए। हम बहुत सारे घरों में झगड़े देखते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं,
बिजनेस को लेके झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं समाज में, डिप्रेशन ला देती हैं वो आपको, मानसिक परेशानी ला देती हैं वो आपको। बहुत सारे लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे झगड़े चलते हैं, बट जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलजुल कर रहो, हंसते रहो, आस पड़ोस में किसी का दुख देखो। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दिख रहा है कि एक बुजुर्ग लेडी रोड क्रॉस कर रही है और आप उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस भी करा दोगे ना, वो भी एक आपको सुकून आएगा, आपको बहुत सुकून आएगा। रोड तो क्रॉस वैसे भी कर लेंगी वो, आप नहीं कराओगे कोई और करा देगा, कोई और नहीं कराएगा, वो होली होली कर लेंगी। पर जब आप किसी की हेल्प करोगे, आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई चक्कर नहीं, हेल्प करने के बड़े तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। कोई लड़ रहा है, लड़ाई छुड़वा दो। कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस करा दो, ट्रैफिक रोक दो 1 मिनट के लिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, पर वो सुकून अंदर मिलेगा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।